کابینہ میں یہ مطالبہ ضرور کروں گا. ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ پرائم منسٹر کا ہونا ہے کہ ہمیں اس رپورٹ کو پبلک کرنا چاہیے. ہیلی کاپٹر ایبٹ آباد آئے اور ایک شخص کو مار کر چلے گئے. ہماری قومی سلامتی کی اس سے زیادہ بدترین خلاف ورزی کبھی نہیں ہوئی. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ منظر عام پر لانے کی حمایت کر دی. وزیر اعظم سے بات کرنے کا بھی اعلان. اس بچے کی اوٹ پٹانگ باتوں کا جواب دینے کے بجائے جب آپ یہ اوٹ پٹانگ باتیں پھر وہ بات لمبی ہو جاتی ہے. کس انداز کی اردو ہے یہ بھی مجھے نہیں پتا. گا اور گی میں ان کو فرق کوئی نہیں ہے. مذکر اور مؤنث میں ان کو کوئی فرق نہیں ہے. اس میں یہ بولتے ہیں اور یہ گرجتے ہیں اور بجتے ہیں اور چیختے اور چلاتے ہیں. پیپلز پارٹی کے حملوں پر چودھری نثار کا ضبط جواب دے گیا. جس کی والدہ کا نام پاناما میں ہے وہ بھی پاناما کر رہا ہے. پیپلز پارٹی کی کرپشن کے خلاف مہم ایسی ہے جیسے بی جے پی مسلمانوں کے حق میں مہم چلائے. چودھری نثار کا آئی جی سندھ کی تبدیلی پر اظہار افسوس. چودھری نثار اپنی خواہشات اور تصورات اپنے پاس رکھیں. پی پی چیئرمین کا مشورہ. گو نواز گو کا نعرہ بھی لگا دیا. ساری عمر باہر پڑھنے والے نوجوان پر تنقید وزیر داخلہ کو زیب نہیں دیتی. بلاول حکومت کے لیے سیاسی خوف بن چکے. مولا بخش چانڈیو کا رد عمل. سندھ حکومت کے پاس افسران کو ہٹانے کا اختیار موجود ہے. آئی جی سندھ نے خود چھٹیوں کے لیے درخواست دی. وزیر اعلیٰ سندھ کا وفاقی وزیر داخلہ کے بیان پر رد عمل. جبری رخصت کا تاثر مسترد. چودھری کو 2017 میں جانا پڑے گا. جائے گا بالکل. منظور وسان کی خواہش تجزیہ یا خبر. 2017 چودھری نثار کی رخصتی کا سال قرار دے دیا. کہا آصف زرداری کی وطن واپسی کے بعد بکھری ہوئی اپوزیشن ایک پیج پر ہوگی. اس کے پیچھے ٹوٹلی کرپشن کا بم ہوگا. من مانی ہوگی. منسٹریاں کنٹرول کریں گی. منسٹریوں کے کنٹرول میں ہوگا. ریگولیٹری اتھارٹیز وزارتوں کے ماتحت کیا ہوئی؟ اپوزیشن متحد ہو گئی. پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، جماعت اسلامی اور اے این پی نے فیصلہ مسترد کر دیا. خورشید شاہ کا سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان. فیصلہ جمہوری نظام کو بادشاہت میں بدلنے کی کوشش ہے. تحریک انصاف بھی برہم. سینٹ نے بھی حکومت سے وضاحت طلب کر لی. پانچ ریگولیٹری اتھارٹیز کو وزارتوں کے ماتحت کرنے کے بعد وزارت پیٹرولیم نے سی این جی کی قیمت ڈی ریگولیٹ کر دی. سی این جی اسٹیشنز مالکان قیمتوں کا تعین خود کر سکیں گے. شہری پریشان. مہنگی ہو جائے گی تو پھر ہم لوگ بند کریں گے. اور کیا تو ایل پی جی پہ چلائیں گے. کیا کریں, مجبوری ہے. مہنگی تو نہیں ڈلوا سکتے, چھوڑ دیں گے سی این جی. دنیا پر منڈلاتے دہشت گردی کے سائے گہرے ہونے لگے. جرمنی میں ٹرک کرسمس مارکیٹ میں موجود لوگوں پر چڑھ دوڑا. ترکی میں روسی سفیر کا قتل اور امریکی سفارت خانے پر فائرنگ. سوئٹزرلینڈ میں مسجد پر حملہ. مجموعی طور پر 13 افراد ہلاک, متعدد زخمی. برلن کرسمس مارکیٹ پر حملے کے شبے میں گرفتار پاکستانی تفتیش کے بعد بے گناہ قرار. قومی اسمبلی کے اجلاس میں آج پھر گرما گرمی. تحریک انصاف کے اسد عمر اور اسپیکر ایاز صادق کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ. ایشو پر بات کریں ورنہ اجلاس ملتوی کر دوں گا. اسپیکر کا انتباہ. پی ٹی آئی کے شور شرابے پر اجلاس ملتوی. خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی ہنگامہ آرائی. تحریک انصاف کے سابق صوبائی وزیر ضیاء اللہ آفریدی حکومت پر برسے تو اسپیکر نے بولنے سے ہی روک دیا. عمران خان نے کرپٹ افراد کو کابینہ میں کیوں رکھا ہے؟ ضیاء اللہ آفریدی کی اسمبلی میں کپتان پر کڑی تنقید. سمندروں کے محافظوں کی ایک اور کامیابی. پاک بحریہ کے ہر اول جنگی یونٹ کا شمالی بحیرہ عرب میں لائیو میزائل فائرنگ کا مظاہرہ.
जहाज से दागे गए मिसाइल ने 100% दुरुस्तगी के साथ हदफ को निशाना बनाया। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा का LOC बिम्बर सेक्टर का दौरा, लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर ने ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा, अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ भी की। भारत दुश्मनी छोड़ दे और CPEC से फायदा उठाए, कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज का मशवरा। कहा, झूठ बोलकर बैरून मुल्क बैठे लोग अवाम को नहीं बहका सकते। अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, रशिया, चाइना, तमाम, और अगर भारत दुश्मनी छोड़ दे तो भारत भी इससे फायदा उठाए। परवेज मुशर्रफ का 2 मेजर जनरल्स के मामले पर इख्तलाफात से मुतालिक बयान बेबुनियाद करार। इस मामले पर साबिक सदर और वजीर आजम नवाज शरीफ में कभी बात नहीं हुई थी। इंटरव्यू गैर हकीकी और मन घड़त है। तर्जुमान वजीर आजम हाउस। कराची बदमनी के अहम किरदार हम्माद सिद्दीकी के गिर्द खेरा तंग। FIA ने अहम मतलूब मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली। पासपोर्ट ब्लॉक, रेड वारंट भी जारी। MQM लंदन के रहनुमा अमजदुल्ला और प्रोफेसर हसन जफर रिहाई के बाद सेंट्रल जेल कराची के बाहर से दोबारा गिरफ्तार। अजीजाबाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 2018 के इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। हैदराबाद की तबाही की जिम्मेदार MQM और पीपल्स पार्टी हैं। अनीस कायम खानी की मीडिया से गुफ्तगू। आज न्यूज की खबर पर कराची की हेवन सिटी सोसाइटी के खिलाफ एक्शन। तहकीकात में तमाम खाते जाली निकले। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने खातों की मनसूखी के लिए महकमा रेवेन्यू को खत लिख दिया। हब डैम से कराची को पानी फराहम करने वाली केनाल में शगाफ पड़ गया। शहर को 20 मिलियन गैलन पानी की फराहमी में कमी। जिला गरबी के मुख्तलिफ इलाके मुतासिर, मरम्मत का काम जारी। मौलाना फजलुर रहमान का कश्मीर और शाम में मुसलमानों पर मजालिम के खिलाफ 23 दिसंबर को मुल्क गिर यौम एहतजाज का ऐलान। टीम ने मेलबर्न में डेरे डाल लिए। खिलाड़ी एक रोज आराम के बाद परसों से प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। was in the game. 11, tough for anybody. That's it. Ball has gone. India have done it. What a victory this is. इंग्लैंड के खिलाफ रविंद्रा जडेजा का जादू चल गया। भारत ने 5वें और आखिरी टेस्ट में इंग्लिश टीम को इनिंग्स और 75 रन से हरा दिया। 5 मैचेस की सीरीज 4-0 से अपने नाम कर ली। भारत के हाथों इंग्लैंड की शिकस्त का फायदा पाकिस्तान को पहुंचा। टीमों की टेस्ट रैंकिंग में कौमी टीम की 1 दर्जा तरक्की के बाद तीसरी पोजीशन। भारत की पहली पोजीशन मजीद मुस्तकम, इंग्लैंड 5वें नंबर पर आ गया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जर्सी क्यों पहनी? भारतीय रियासत आसाम में शाहिद आफरीदी का फैन मुश्किल में पड़ गया। मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रहा। नकल बमुताबिक असल, भूत अवाम को डराने सड़कों पर आ गए। चीखते चिल्लाते मॉन्स्टर्स ने आग के गिर्द रक्स भी किया। जर्मनी में मुनक्किदा रिवायती परेड में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अली आबिद। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं, खबरें होंगी तफसील के साथ। सबसे पहले आपको बताएंगे कि वफाकी वजीर दाखिला की धुआंधार मीडिया टॉक आज सामने आई है। वफाकी वजीर दाखिला ने भी एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट को मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर दिया है और चौधरी निसार पीपल्स पार्टी पर भी खूब बरसे हैं और कहा कि जिस बच्चे को मुज़क्कर और मुअन्नस का फर्क मालूम नहीं उसके सवालात क्यों करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी जैसी मुहिम चला रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उनका इस बारे में मजीद क्या कुछ कहना था, आपसे शेयर करते हैं। इस्लामाबाद पुलिस लाइन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला ने कहा, अमरीकी आए, एक शख्स को कत्ल किया और लाश उठाकर ले गए। आजादी और खुद मुख्तारी पर इससे बड़ी कोई आंच नहीं आई। ये कमीशन बनाया गया पीपल्स पार्टी दौर में और ये छोटा सा वाकया नहीं था। आजादी और खुद मुख्तारी को ट्रैम्पल किया गया अमेरिकन हेलिस ने। इससे बड़ी पाकिस्तान की आजादी और खुद मुख्तारी पे कोई कांच नहीं आई। कमीशन पीपल्स पार्टी के दौर में बनाया, उन्हें याद नहीं रहा। रिपोर्ट मंजरेआम पर आनी चाहिए। मैं तो काबीना में ये मुतालबा जरूर करूंगा। जाहिर है कि ये फैसला प्राइम मिनिस्टर का होना है कि हमें इस रिपोर्ट को पब्लिक करना चाहिए। पीपल्स पार्टी पर भी खूब बरसे, कहा बिलावल की वालदा का नाम पनामा पेपर्स में है और वो दूसरों की बात करते हैं। अभी तो उन्हें मुज़क्कर और मुअन्नस का फर्क नहीं पता। जब आप ये ऊट पटांग बातें फिर वो बात लंबी हो जाती है, तो मुझे ये सवाल मत किया करें। जब आईजी साहब खुद रुखसत पे चले गए बावजूद वफाक के कहने पे, जाहिर है उन्होंने सिंध में ही रहना है। बहुत सारी जो तब्दीली जो बेहतरी आई है उनकी वजह से आई है, तो ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है। चौधरी निसार ने कुछ केसेस का हवाला भी दिया, कहा कि बच्चे की ऊट पटांग बातों का जवाब देने के लिए क्यों सवालात करते हैं। इनके जो महलात हैं दुबई में, आप भूल गए हैं हार के केस का, यार आप भूल गए हैं $60 मिलियन का। चौधरी निसार ने करप्शन के खिलाफ पीपल्स पार्टी की मुहिम को बीजेपी से जोड़ दिया और कहा कि ये मुहिम ऐसी है जैसे भारतीय शिदत पसंद मुसलमानों के लिए नाम नेहाद मुहिम चलाएं। दूसरी जानिब वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आईजी सिंध एडी खाजा को जबरी रुखसत पर भेजे जाने पर वफाकी वजीर दाखिला का एतराज मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि आईजी सिंध ने खुद छुट्टियों के लिए दरखास्त दी थी, अलबत्ता सिंध हुकूमत के पास इख्तियार है वो जिस अफसर को चाहे रखे और जिसे चाहे ओहदे से हटा दे। अभी आईजी साहब छुट्टी पे गए हैं, 15 दिन की छुट्टी पे गए, उन्होंने खुद दरखास्त दी है छुट्टी की। बहुत क्लियरली यहाँ उनसे पूछ लें अगर उनको भेजा है किसी ने जबरदस्ती, तो खुद उन्होंने दरखास्त दी, छुट्टी पे गए हैं। और किसी भी अफसर को बदलना प्रेरोगेटिव है सूबाई हुकूमत का, इसमें कोई वजूहत नहीं होती। अच्छे अफसर सारे पुलिस में 21 ग्रेड में जो आ जाता है, 21 या 22 ग्रेड का आईजी लगता है। जो अफसर 30-35 साल सर्विस करने के बाद 21 या 22 ग्रेड में आता है तो उस लेवल पे होता है ना, उसको प्रमोट मैं नहीं करता हूँ। 21 ग्रेड की प्रमोशन तो प्राइम मिनिस्टर करता है, तो उन्होंने उस काबिल समझा होगा तो उसी में से कोई होगा। कोई 17 ग्रेड वाला आईजी नहीं लगेगा, 21-22 वाला ही लगेगा अगर लगा चेंज हुआ तो। उधर बिलावल भुट्टो का कहना है कि वजीर दाखिला ख्वाहिशात और तस्वुरात अपने पास ही रखें, सिर्फ 4 मुतालबात पर तवज्जो दें। मुशीर इत्तला सिंध बोले कि कभी चौधरी निसार के खानदान पर बात नहीं की। मंजूर वसान ने कहा कि चौधरी निसार अब ज्यादा अरसे नहीं रहेंगे। चौधरी निसार की बिलावल भुट्टो पर तनकीद से पीपल्स पार्टी नाराज नजर आती है। वजीर दाखिला ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को बच्चा और उर्दू से नाबलद करार दिया, जिस पर बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पर अपने दिल की भड़ास निकाली। उन्होंने ट्वीट पर गो नवाज गो का नारा लगाया और कहा वजीर दाखिला हमारे 4 मुतालबात पर तवज्जो दें। मुशीर इत्तला सिंध मौला बख्श चांडियो कहाँ पीछे रहने वाले थे। कहने लगे बिलावल भुट्टो के तलफ्फुज पर तनकीद चौधरी निसार को जेब नहीं दे दी। वजीर दाखिला की खामियां सामने आ चुकी हैं, वो इल्जामात ना लगाएं, हकायक का सामना करें। सिंध के वजीर सनत मंजूर वसान ने कहा कि आसिफ अली जरदारी की वतन वापसी के बाद अपोजिशन जमातें एक पेज पर होंगी। हाँ, ये ज़रूर उनके जहनों में बात जहन नशीन हो रही है कि पहले जिस तरह से छोटी छोटी पार्टियां मिला करके या नवाज लीग का भी सहारा लेकर के एमक्यूएम उस वक्त थी उसके मिला करके हमारी मेजॉरिटी को मिनॉरिटी में करने की साजिश करते थे। अब वो नहीं होगी। अब इंशाल्लाह हम पीपल्स पार्टी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंजूर वसान ने 2017 को वज़ीर दाखिला की रवानगी का साल करार दिया। साथ ही उनका कहना था कि आम इंतखाबात 4 से 5 माह कबल होंगे। नया साल पीपल्स पार्टी और सिंध के लिए बेहतर होगा।
और अब कुछ बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के साबिक सीनियर जज की, जिन्होंने बरसों बाद एबटाबाद में उसामा के खिलाफ अमरीकी ऑपरेशन के तहकीकाती कमीशन का भूला बिसरा किस्सा क्या छेड़ा। हर तरफ ही बहस छिड़ गई है। पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं कि मामला चाहे जितना भी हसास हो, कौम को हकायक जानने का हक मिलना चाहिए। उस वक्त का इंटीरियर मिनिस्टर एम्पावर्ड था उसको करने के लिए, और ना आज का इंटीरियर मिनिस्टर जो एम्पावर्ड है। ये आनी चाहिए, टाइम पे आनी चाहिए। ये जो देर से आई है इसमें से बददियानती की बू आती है। कई सेंसिटिविटीज भी होती हैं जो मुल्क के मफाद में होती हैं, जिनमें आपकी कुछ मजबूरियां होती हैं, लेकिन इवन देन कमीशन जो बनाया उनको भी पता होता है कि क्या कहना है क्या नहीं। हमें मसलहतों और मफादात से बालातर होकर आवाम का सोचना पड़ेगा। एबटाबाद के कमीशन का बहुत बड़ा अहम वाक़या था, उसको भी कौम के सामने लाना चाहिए। फौरी खबर आपको देते हैं कि MQM कराची की तंजीमी कमेटी के साबिक सरबराह हमास सिद्दीकी की गिरफ्तारी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, और इसी हवाले से मज़ीद जान लेंगे आज न्यूज कराची के ब्यूरो चीफ रफत सईद से। तो रफत, बताइएगा, अब हमास सिद्दीकी की गिरफ्तारी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, रेड वारंट भी जारी कर दिया गया है, क्या अपडेट्स हैं? देखें, FIA के काउंटर टेररिज्म विंग ने हमास सिद्दीकी की गिरफ्तारी की मुकम्मल कर ली है। तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। उनका पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया गया है, उनका जो नादरा का शनाख्ती कार्ड था वो भी ब्लॉक कर दिया गया है, रेड वारंट उनके जारी हो चुके हैं। और अब्दुल रहमान भोला भी इसी तरीके से जनूबी अफ्रीका फरार होना चाहता था, लेकिन बरवक्त जो है काउंटर टेररिज्म विंग जो है FIA का, उसने इंटरपोल को मुत्तला किया और उसे वहां से गिरफ्तार किया गया। दौरान तफ्तीश भोला ने खासे सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। इब्तदाई तौर पे उसने भी ये बताया गया कि उसे MQM के तमाम धड़ों ने डिसोन कर दिया है। तो उसके बाद वो फट पड़ा और उसने ये बताया कि मैंने जब MQM के बहुत सारे कायदीन को जब तशद्दुद का निशाना बनाया था तो वो हमास सिद्दीकी के कहने पर बनाया था। आग लगाने के हवाले से उसने बरमला एतराफ किया कि वो इसमें मुलव्विस है। उसके साथ जो लोग थे उनके भी नाम बताया, और साथ उसने कहा कि तमाम मामला जो है हमास सिद्दीकी और जो नदीम नुसरत हैं उनके अहकामात आते थे और उनके अहकामात पर कार्रवाई की। इसके अलावा उसने कराची शहर में कत्ल की कई वारदातों का एतराफ किया और उसने कहा कि पार्टी क़यादत की तरफ से उससे कहा जाता था कि कुछ लोगों को मारना है जिससे कि हमदर्दी हासिल होगी और पार्टी में खौफ की सजा भी रहेगी, जिसकी वजह से कारकुन गिरफ्त में रहेंगे। तो खास ये चीजें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आएंगी, खास इनके शफात होंगे और हमास सिद्दीकी को लाने की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं और ये जिम्मेदारी यकीनन FIA काउंटर टेररिज्म विंग जो है वो अंजाम देगा। साथ साथ JIT में FIA की अदम शमूलियत पर भी खासे ठीक है। हमास सिद्दीकी की गिरफ्तारी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, रेड वारंट भी इसी सिलसिले में जारी किया जा चुका है और उनका पासपोर्ट भी ब्लॉक कर दिया गया है ताकि वो अब मजीद कहीं सफर ना कर सकें। और इसी वाले से अपडेट कर रहे थे आज न्यूज कराची के ब्यूरो चीफ रफत सईद, आपका बहुत शुक्रिया। हमारी अब तक एक और हेडलाइन स्टोरी सेनेट से मुतालिक, जिसने ओगरा समेत 5 रेगुलेटरी अथॉरिटीज को वफाकी वजारतों के मातहत करने पर हुकूमत से वजाहत तलब कर ली है। ऐवान में सानिहा क्वेटा पर जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को जेर बहस लाने की तहरीक भी मंजूर कर ली गई। सेनेट का इजलास रजा रब्बानी की जेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि हुकूमत ने किन कवायद पर रेगुलेटरी अदारों को वजारतों के मातहत बनाया, इस हवाले से मुश्तरका मफादाती कौंसिल को क्यों बाईपास किया गया, हुकूमत इस हवाले से वजाहत करे। ऐवान ने सानिहा क्वेटा इंक्वायरी रिपोर्ट पर तहरीक इल्तवा भी मंजूर की, जिस पर बहस एक दिन बाद शुरू की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर निहाल हाशमी ने IG सिंध की तब्दीली पर नुक्ते एतराज पेश किया और कहा कि पुलिस से मर्जी के काम लेने के लिए ये किया गया, इससे पुलिस का मोरल डाउन होगा और अमन कोशिशें मुतासिर होंगी। बाद में इजलास मुलतवी कर दिया गया। अब आपको बताएं कि हुकूमत ने CNG मालकान को खुली छूट दे दी है। कीमतों का तयन अब ओगरा नहीं बल्कि फिलिंग स्टेशंस मालकान करेंगे। सार्फिन अभी से परेशान हो चुके हैं, कहते हैं कि कीमत बढ़ाई गई तो पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे। सफदर अब्बास मजीद बताएंगे। हुकूमत ने CNG मालकान का देरीना मुतालबा मान लिया, लेकिन गरीब सार्फिन का ख्याल ना किया। सरकारी नोटिफिकेशन के बाद अब फिलिंग मालकान खुद मुख्तार हैं कि CNG की कीमत आज खुद तय करें। हर एक डीलर अपना हिसाब लगाएगा कि कितने टैक्सेस हमारे हैं, कितनी पड़ता पड़ रहा है, उसके बाद अपना प्रॉफिट लगा देगा। हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं, ये हमारा दरीना मुतालबा था क्योंकि हम नुकसान में जा रहे थे और वो गवर्नमेंट ने पूरा कर दिया है। रिक्शा चलाने वाले और दीगर सार्फिन हुकूमत के इस फैसले से काफ़ी परेशान हैं। इनका ख्याल है कि हर स्टेशन पर अलग कीमत होगी, जिससे महंगाई मजीद बढ़ेगी। बाज़ तो किरायों में इजाफे के लिए अभी से तैयार बैठे हैं।
महंगी हो जाएगी तो फिर हम लोग बंद करेंगे और क्या, बस यही करेंगे, फिर पेट्रोल सस्ता है उसी पे चलाएंगे। मतलब अगर कम ना हो तो कम से कम बरकरार रहे। बरकरार है इसलिए कि बहुत सारे वालिदैन ऐसे कि वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर जाहिर सी बात है खर्चा अखराजात बढ़ेंगे तो फिर हम मुतालबात तो करेंगे। पेट्रोल से चलाएंगे, पेट्रोल बढ़ेगा, गैस से चलाएंगे तो एलपीजी पे चलाएंगे, क्या करें, मजबूरी है, महंगी तो नहीं डलवा सकते, छोड़ देंगे सीएनजी। सिंध में सीएनजी की मौजूदा कीमत 66 रुपये 50 पैसे फी किलो है, जबकि पंजाब में दरामदी एलएनजी 49 रुपये फी लीटर फरोख्त की जा रही है। सीएनजी ऑनर्स की जानिब से कीमतों में मुतवक्का इजाफे से सार्फिन अभी से खौफजदा हैं। सार्फिन कहते हैं अगर सीएनजी महंगी की तो वो इसका नेमुल बदल इस्तेमाल करेंगे। सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। ब्रेक के बाद आगे देखिए। जदीद तरीन मिसाइल का कामयाब तजुर्बा और बर्लिन का नवीद बेगुनाह निकला। वेलकम बैक अगेन। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि पाक बहरिया ने समंदर से समंदर में तवील फासले तक मार करने वाले जदीद तरीन मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। हर किस्म के वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत के हामिल इस मिसाइल ने अपने अहदाफ को 100% ठीक निशाना बनाया। जुमान पाक बहरिया के मुताबिक बहरी जंगी जहाज असलत से लाइव फायरिंग के दौरान समंदर से समंदर में मार करने वाले बहरी जहाज शिकन मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया है। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद ज़काउल्लाह ने इस मश्क का मुआयना किया। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि लाइव मिसाइल फायरिंग मुल्की बहरी दिफाई सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। कामयाब मिसाइल तजुर्बा बहरी सरहदों के दिफा में पाक बहरिया के नाकाबिले शिकस्त अज़्म का सबूत है। जदीद मिसाइल के इंतहाई कामयाब तजुर्बे ने बहरी अफवाज का जोश और वलवला भी मजीद बुलंद कर दिया है। अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद ज़काउल्लाह ने भी पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है। ये मिसाइल रिवायती और गैर रिवायती हर किस्म के वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। फैसल रजा खान, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब बात करेंगे कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज की, जिनका कहना है कि भारत दुश्मनी छोड़ दे तो वो भी सी पैक से फायदा उठा सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि झूठ बोलकर बैरूनी मुल्क बैठे लोग अवाम को बहका नहीं सकते। हमारा बैरूनी दुश्मन नहीं चाहता कि पाकिस्तान में अमन हो और पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान अपने मकसद तक जा पहुंचे। और पाकिस्तान का मकसद एक इस्लामी फलाही रियासत बनना है। पाकिस्तान एक इस्लामी फलाही रियासत बन के उभरेगा और तमाम ममालिक जो हमारे इर्द गिर्द हैं वो भी इससे फायदा उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, रशिया, चाइना, तमाम। और अगर भारत दुश्मनी, भारत भी इससे फायदा उठाएगा। अब आपको बताते हैं कि जर्मनी में अवाम पर ट्रक चढ़ाने के शुबे में गिरफ्तार पाकिस्तानी बेगुनाह साबित हो गया। गुज़िश्ता रात होने वाले हमले में 12 अफराद हलाक और 48 जख्मी हो गए थे। मुलजिम अभी तक मफरूर है। तुर्क सदर ने अनकरा में रूसी सफीर के कत्ल को इश्तियाल अंगेजी करार दिया है। और उधर स्विट्जरलैंड में मस्जिद के करीब से मुश्तबा हमलावर की लाश मिली है। मस्जिद पर फायरिंग से 3 नमाजी जख्मी हो गए थे। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में एक बार फिर हुई जालिमाना कार्रवाई। एक शख्स ने क्रिसमस की खरीदारी में मसरूफ अवाम पर ट्रक चढ़ा दिया। हमले में 12 अफराद हलाक और 48 जख्मी हुए। ऐनी शाहिदीन ने वाक़े को खौफनाक करार दिया। पुलिस ने शोबे में नवीद नामी पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया, जिसने सियासी पनाह की दरख्वास्त दे रखी थी। तहम तफ्तीश के बाद पुलिस ने उसे बेगुनाह करार देकर रिहा कर दिया। पुलिस का कहना है कि साहने का असल मुल्जिम मफरूर और मुसल्ला है। ऐसा ही एक हमला 5 माह कबल जुलाई में फ्रांसीसी शहर नीस में हुआ था, जिसमें 84 अफराद हलाक हो गए थे। उधर तुर्क सैयद रजब अर्दवान ने अंकरा में रूसी सफीर की हलाकत को दोनों ममालिक के करीबी ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की साजिश करार दिया। olduğumuz görüşmede bunun bir provokasyon। अंकरा में ऑफ ड्यूटी पुलिस अफसर ने एक तकरीब के दौरान रूसी सफीर को गोलियां मारकर हलाक कर दिया था। मुल्जिम जाए वकुआ पर हमला आवर के खानदान को गिरफ्तार कर लिया गया है।
اور تفتیش جاری ہے۔ عالمی برادری کی جانب سے دونوں واقعات کی شدید مذمت کی گئی۔ ادھر سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورخ میں مسجد پر حملے میں 3 نمازیوں کو زخمی کرنے والے مبینہ حملہ آور کی لاش مسجد کے قریب سے ملی ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ اور اب آپ کو لے کر چلیں گے بھارتی ریاست تریپورہ کی اسمبلی میں، جہاں انوکھا واقعہ پیش آیا۔ اس میں رکن پارلیمنٹ اسپیکر کا میس لے کر اسمبلی سے بھاگ نکلے اور دیگر اراکین انہیں روکتے ہی رہ گئے۔ تیزی سے بھاگتے یہ صاحب کسی چور کے پیچھے نہیں دوڑ رہے، بلکہ جناب یہ بھارت کی تریپورہ اسمبلی کے رکن ہیں جو غصے میں سر پر دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ بھارتی ریاست تریپورہ کی اسمبلی میں اسپیکر نے ایک معاملے پر بحث سے انکار کیا، جس پر سدیپ رائے اس قدر مشتعل ہوئے کہ اسپیکر کا میز لے کر ہی بھاگ گئے۔ دیگر اراکین میز واپس لینے کے لیے سدیپ رائے کے پیچھے بھاگے، لیکن وہ ناکام رہے۔ تاہم پارلیمنٹ اسٹاف سدیپ سے اسپیکر کا میز لینے میں کامیاب ہو گیا۔ تریپورہ اسمبلی میں اس نوعیت کا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ مزید اہم خبریں بھی شامل کریں گے، ابھی وقت ہوا ہے نیوز اپ ڈیٹس کا۔